معاف کیجیے گا، یہ علماء روڈ کے اس ٹپوری جوانوں کی طرح نہیں ہیں جو ایک وقت کا خرچ لے کے ڈھابا آباد کرتے ہیں۔ علماء تو اپنے پیٹ کو کاٹ کر مسجدیں آباد کر رہے ہیں۔ جس طرح سے علماء نے اپنی ضرورتوں کو کم کر کے ملی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، جس کو اسے دیکھنا ہے وہ مساجد آ کے چلا آئے کہ علماء ہر ایک کو برداشت کر کے دینی ضرورتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے ٹرسٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہاں بھی برداشت کر رہے ہیں علماء کی برداشت کی قوت بہت ہے، لیکن جب علماء کے سامنے یہ معاملات برداشت سے آگے بڑھ گئے تو اس کا مطلب اب ملک کی بقا اور سالمیت خطرے میں ہے۔ اور ملک کی جب بات آتی ہے تو بہت سے صحافی حضرات ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں کہ صاحب مہاراشٹر کا الیکشن ہے اور بات نیشنل کی ہو رہی ہے، تو معاف کیجیے گا، یہ نیشنل اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت جو نیشنل پارٹی حکومت کر رہی ہے بی جے پی کی صورت میں، ہم اسے اس لیے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے نہ صرف ملک کی توہین کی ہے بلکہ اس ملک کے قانون کی توہین کی ہے کہ جس قانون کو ہندوستان کا ہر بسنے والا اپنے مذہب کی مقدس کتاب کے بعد سب سے اہم سمجھتا ہے۔ وہ ہے اس ملک کا دستور، وہ ہے اس ملک کا قانون۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو علماء کرام اگر داہنے ہاتھ میں قرآن پاک لے کے چلیں گے تو بائیں ہاتھ میں ملک کا قانون لے کے چلیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی رہتے ہو تمہارے دو قسم کے بھائی ہیں، ایک وہ بھائی جو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تمہارے بھائی ہیں، ایک وہ بھی بھائی ہیں کہ جو اس دھرتی اور مٹی سے رشتے کی بنا پہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو جب ہم بھائیوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا بھائی لائق ہے اور کون سا بھائی نالائق ہے، تو اگر ہمیں کلمہ پڑھنے والوں میں نالائق نظر آئیں تو ہمیں مٹی کا بھائی اگر لائق ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور وہی مٹی کا بھائی بھوپندر احواز ہے ہمارا کہ جس نے 15 برسوں سے یہاں پر یقین دلایا، ہر جگہ شانہ سے شانہ ملا کر مولانا صاحب سلامت اللہ ندوی صاحب اور ہمارے علماء اہل حدیث علماء اہل سنت تمام مکاتب فکر کے یہاں علماء ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، میں علی اصغر حیدری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک نوجوان عالم دین ہے مولانا سیف اللہ صاحب، جب میں ان کے یہاں پہنچا ہوٹل پر تو اپنے والد سے وہ میرا تعارف کرا رہے ہیں کہ بابا یہ شیعہ مولانا ہیں، ممرہ کے کسی بھی ملت کے پروگرام میں کبھی یہ نذرانہ قبول نہیں کرتے، تو جو ملت کے پروگراموں سے جس سے پیٹ پال رہا ہو وہاں نذرانہ لے لیتا ہو وہ کسی سیاسی پارٹی کے ہاتھ نہیں بک سکتا۔ جس طرح میں اپنے لیے چیلنج کر رہا ہوں اپنے تمام علماء کرام کے لیے چیلنج کر رہا ہوں۔ یہاں جو جتیندر احواز کی حمایت کی جا رہی ہے یہ حمایت پیسے کے لیے نہیں ملک کے لیے کی جا رہی ہے، اور ملک کی تعمیر میں ہم نے پیسہ لگایا ہے، تعمیر سے پیسہ چرایا نہیں ہے۔ یہ پارٹی جو آج پیسہ چرا کر ہر جگہ عوام کو لوٹ بھی رہی ہے اور نفرتیں پھیلا رہی ہے، ہم اسے دور رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اب اگر چاہے جتنا بڑا گھٹا سجا کر پیشانی پر اور چاہے جتنا بڑا نعرہ لے کر کے ہمارے بیچ آئے گا تو ہم اس سے یہی بات کہیں گے کہ ہمارے سامنے وہ سیکولر طاقتیں کہ جس پر ہمارے علماء نے مہر لگائی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے جھانسے میں نہیں آنے والے، اس لیے کہ شدت پسند چاہے ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام شدت پسندی نہیں سکھاتا، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ آج دہشت گرد خود حکومتیں چلانے بیٹھ گئے ہیں، حتیٰ کہ اسی ممرہ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی پکڑے گئے ہیں خواتین وغیرہ کی صورت میں جنہوں نے نقاب کا سہارا لے کر کے بھیک مانگی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح بدنام کرنے والے لوگوں کو اس بار ممبرہ کی عوام اپنے اتحاد سے دور رکھے گی اور کسی نئے کو آزمانے کا ہمارے پاس اس وقت موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ ملک جس جگہ پر کھڑا ہے
हम जितेंद्र अहवाज को 3 मरतबा आजमा चुके हैं और आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। चाहे दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुस्लिम पर्सनल्लाह का रहा हो, चाहे जमीयत उलमा का कौमी यकजहती रहा हो, चाहे अमन मार्च रहा हो, चाहे 3 तलाक रहा हो, हर मसले में हमने देखा है कि जितेंद्र अहवाज ने अपनी दिलचस्पी दिखाकर उलमाए कराम से शाना मिला करके साथ दिया है और साथ दे करके बताया है कि मैं मुमरा की खिदमत करने मुल्क के संविधान के एतबार से आया हूँ, इसलिए कि ये मुल्क का इलेक्शन, ये असेंबली का इलेक्शन और ये पार्लियामेंट का, यहाँ पर जात और मजहब चुनने के लिए नहीं होता, मुल्क का खिदमतगार चुनने के लिए होता है। लिहाजा हमें फख्र है कि हम ऐसे जितेंद्र अहवाज की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं कि जिसने मुमरा में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत की है, जो इस बात की दलील है कि वो क़यादत मुमरा के मुसलमानों की है, गोया मुमरा के मुसलमान पूरे हिंदुस्तान पे निगाह रखते हैं और इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान मुमरा की तरफ देखता है। और मैं समझता हूँ मुमरा का ये फैसला आज का न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है कि किसको कहां हिमायत करना है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पर ताकत पहुंचाने का काम करेगी और मैं आप प्रेस वालों को भी यकीन दिला दूं कि हमारे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह आईने हिंद की पका की हुकूमत बनेगी और हमारे नुमाइंदे उस कानून को नाफिज करके मुल्क को दोबारा उस पटरी पे लाएंगे जहां से मुल्क को फुस्ताई ताकतों ने उतार दिया है। मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम उलमाए कराम की इन बातों की तारीफ करता हूँ और जनाब जितेंद्र अहवाज साहब, और एक बात और कहता चलूं कि मुमरा हमारा तहजीब का गहवारा है। हमारे नजरियाती इख्तिलाफ चाहे जितना रहे हों, लेकिन हमने दूसरे का एहतराम किया, मगर इस बार ऐसा हुआ कि हमें शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ा कि हमारे ऐसे ऐसे भी नुमाइंदे खड़े हैं जो आज जातियात पर उतरकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं। इस सिलसिले को बंद कर ले, अपनी शराफत से लोग इलेक्शन लड़ने आए ताकि यहाँ पर उनका कोई एतबार कायम हो सके, वरना आज अगर उन्होंने इस तरह की ज़बानें इस्तेमाल की हैं तो कल शायद मुमरा के अवाम ऐसे अफराद को खड़ा करना भी गवारा नहीं करेंगे, उसके साथ आना तो बहुत दूर की बात है। मैं आखिर में एक बार फिर अपने तमाम अकाबिर उलमाए किराम के साथ इस बात का भरपूर ऐलान करता हूँ कि ऑल इंडिया शिया फेडरेशन सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम पर्सनल्लाह के साथ मौलाना कल्बे सादिक साहब अल्लाह मकामहू और उनके बाद मौलाना अली नकी नक्कम साहब के बेटे जो ईरान के न जाने कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जिनके सिलेबस पढ़ाए जाते हैं और खुद मुख्तलिफ मुल्कों में वो लेक्चर्स देते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, आज वो मुस्लिम पर्सनल्लाह में वाइस प्रेसिडेंट हैं। लिहाजा कौम तशय्यो कभी मुल्क के धारे से अलग नहीं है, क्योंकि जहां आलम इस्लाम की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वहां मजहब तशय्यो खड़ा है। आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान से जहां से 3500 साल की शाही को उखाड़ फेंका, उन्होंने कहा था कि याद रखना हमारी पहचान शिया और सुन्नी नहीं बल्कि उम्मत मोहम्मदिया, और उम्मत मोहम्मदिया के उलमा ने आज अगर जितेंद्र अहवाज के सर पे हाथ रखा है तो ये बताने के लिए रखा है कि हम उलमा ने फकत मुसलमान नहीं देखा है, इंसान देखा है। अगर इंसानों के काम आने वाला इंसान है तो हम उलमा उसके सर पे भी हाथ रखेंगे, उसका मजहब नहीं देखेंगे। उसी का ऐलान करने के लिए आज हम सब जमा हुए हैं कि हमने जितेंद्र अहवाज के काम देखे हैं, मजहब नहीं देखा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा को बार बार बता जा रही, दाढ़ी वाले जो है इनकी दाढ़ियां नोच कर जो है इन्हें मस्जिद से खींच कर दाढ़ियां नोच कर इनको जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाएगा। फिर भी वो कितने जमीन फरोश आलिम हैं कि जो आज महायुति का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जमीन फरोश है, वो मुनाफिक है, क्योंकि नबी की अजमत सबसे बढ़कर है। यही तो बात है, जब नबी की अजमत सबसे बढ़कर है तो मेरे भी उलमा है ये कौम के गद्दार है, मुनाफिक है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी महायुति की हिमायत करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा यहाँ जो आज से 6 महीने पहले जो 400 पार की मालिक किसने रोका था, ये इंडिया गठबंधन थी ना, एमआईएम भी थी उसमें, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि जो रोक सके। यही इंडिया गठबंधन थी कि जिसने
उस सैलाब को 405 के सैलाब को 241 पर रोक दिया, तो आज भी अगर उस सैलाब को रोका जा सकता है तो किसी और का हाथ में नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के हाथ को मजबूत करेंगे। यही वो हाथ है जो जालिम या गुस्ताख रसूल या दुश्मन रसूल के हाथ को काट सकता है। लिहाजा मैं ज्यादा टाइम में लेती हुई मेरी गुजारिश है उमरा के आह्वान से कि यहाँ विकास आघाड़ी यही वो ताकत है जो इनको रोक सकती है। और इस तौर पर जनाब डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब हैं, मैं करता हूँ और जो है गुजारिश करता हूँ कि आप अगर अपने दीन की हिफाजत चाहते हैं और अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, मुस्तकबिल इस्लाम का मुस्तकबिल चाहते हैं, तो नेशनल इश्यूज को आगे रखिए, लोकल इश्यूज को बाद में रखिए। इंशाअल्लाह लोकल इश्यूज भी हल होंगे। आज अगर हम यहाँ इस मीटिंग के लिए आए हैं तो कल इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए मुकद्दर जब जीत जाएंगे तो उनके पास जाएंगे कि हमारे हम मसले हल करो। लिहाजा हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम जितेंद्र आवार साहब को जिताएं और जिताकर अपना ईमान भी महफूज करें और अपने जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी अंजाम तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। इशू की तरफ रहनुमाई की। मैं समझता हूँ इससे हमारे दरमियान मुल्क की शांति भंग तो होती है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहता हूँ सनातन वैदिक धर्म की भी इससे बहुत ज़्यादा बदनामियाँ होती है इस तरह के लोगों की टिप्पणी देने से। अब मैं अपने शहर की बहुत ही मुक़्तदर मायनाज शख्सियत जिन्हें मुमरा कोसा के तमाम अवाम मुत्तहिद होकर सुनते हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी, आलम इस्लाम में भी, ख़ास तौर पर बगदाद और ईरान के शहरों में लोग उनके सुनने के लिए बेताब रहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आली जनाब अली असगर हैदरी साहब क़िबला दामत बरकातुहू का हमारे सामने वो बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए हमारे मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, हमारे तमाम अकाबिर उलमा जो सिनो साल और इल्म में हमसे बड़े हैं, मसलकी इत्तेहाद के पेश नज़र सिनो साल की कैद मिट जाती है, वरना हमारे अकाबरीन ने जो कुछ कह दिया वो काफ़ी था। और हर एक ने हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का हवाला दिया। यह हवाला चूंकि बहुत बड़ा है क्योंकि ऐसी शख्सियतें समाजी मामलात में दखील नहीं होती, लेकिन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं ऐसे उलमा को कमर बस्तर होकर आगे आना पड़ा क्योंकि मिल्लत का एक बहुत बड़ा तबका खला महसूस कर रहा था कि हम किस तरफ जाएं और किधर देखें। हमारे मुकाबरीन ने इस परेशानी को दूर किया जो हमेशा दूर करते रहे हैं हमारे मसाइल की परेशानियों को। उसी के साथ साथ जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल्लाह से वाबस्ता उलमाए किराम या दीगर मकातब फिक्र के जितने अकाबिर और बड़े उलमा हैं, सबने सेकुलर ताकतों के को मजबूत करने की अपीलें की पार्लियामेंट में भी। और इस वक्त चूंकि ये महाराष्ट्र में है, इलेक्शन महाराष्ट्र का है, मगर हर तरफ से अकाबिर उलमा यहाँ की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं जो बात सबसे अहम आज करना चाहता हूँ, जो जैसा